Welcome to We Learn. This is session 7 of discrete maths. So in today's session we are going to discuss about graphs. After that we are going to discuss the applications of graph, then the degree of graph, and at last we are going to discuss about types of graph. So first of all, let us discuss what is a graph. So basically a graph G is, as you can see here, it will be equal to VE, that means a set of vertices and a set of edges. So it is composed of V. V यहाँ पर शो करता है set of vertices को. Similarly जो E है, E शो करेगा set of edges को. So here set of edges connecting the vertices in V. कोई भी जो ग्राफ है, ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ में कुछ एजेस होती हैं और कुछ वर्टिसेस होते हैं. एज सेट को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और वर्टिसेस के सेट को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं. सो हेयर वी डिनोट्स द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई डिनोट्स द सेट ऑफ एजेस व्हिच कनेक्ट्स द डिफरेंट वर्टिसेस. सो एन एज ई, कोई भी एक पर्टिकुलर एज है उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ एन एज ई which is going to be u and v, between the vertices u and v is a pair of vertices. कोई भी जो एज e होती है, कोई भी जो एक पर्टिकुलर एज है, वो कॉम्बिनेशन होती है हमारे डिफरेंट वर्टिसेस का. दैट मीन्स एक एज डिफरेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है. सो हेयर वी इन दिस ग्राफ वी हैव अ सेट ऑफ वर्टिसेस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल V. सेट ऑफ वर्टिसेस को हमने कैपिटल V से डिनोट किया है. सिमिलरली हेयर दी वर्टिसेस आर A, B, C, D and E. As you can see in this graph here, we have a graph here in which these 5 vertices are A, B, C, D and E. Similarly इस ग्राफ में अगर हम edge set को define करें, then we have 8 edges. So we have represented here these 7 edges in the different sets. Like for a particular set, for a particular vertex set AB, we have a edge which joins these two. अब ये जो edge है इसको हम represent करेंगे with the help of these vertices like AB. AB का मतलब है जो AB एक हमारे ये different vertices हैं उनके बीच में जो edge है इसको हम represent करेंगे इन vertices की help से. So इसको हम read out करेंगे as an edge AB. Similarly edge AC which joins the vertices A and C. Then edge AD. This edge is used to connect the vertices A and D. Similarly BE connects vertex B and E. Then after that we have CD which joins C vertex and D vertex. Then CE, it is used to connect vertex C and vertex E. And similarly at last we have DE which connects vertex D and vertex E. So this is a edge set which contains different number of edges. Similarly, now let us discuss some terminologies which are related to these graphs. So here the first one is adjacent and incident. So if a vertex set that is V0 and V1 is an edge, हमने यहाँ पे define किया कि जो vertex set है V0 और V1 ये represent करता है एक edge को. Then in an undirected graph, एक suppose एक undirected graph है तो उसमें ये क्या represent करेंगे? V0 and V1 are adjacent. V0 और V1 क्या होंगे? Adjacent होंगे. That means these are neighbor to each other. That means यहाँ पर ये दोनों vertex एक ही common edge से connected हैं. So these are adjacent. Adjacent vertices वो vertices होते हैं जिनके बीच में एक common edge होती है. So the edge V0 V1 is incident on vertex V0 and V1. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा है कि जो हमारी edge है V0 V1 वो इंसिडेंट हो रही है दो वर्टिसेस पर, दैट इज V0 और V1 पर. सिमिलरली द नेक्स्ट कंडीशन हियर इज इफ V0 V1 इज एन एज इन अ डायरेक्टेड ग्राफ. अब अगर ये जो एज है डायरेक्टेड ग्राफ में होती है देन वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट टेक्निक हियर, दैट इज V0 इज एडजेसेंट टू V1. यहाँ पर जो V0 वर्टेक्स है वो एडजेसेंट होगा V1 के, एंड V1 इज एडजेसेंट फ्रॉम V0. Similarly V1 भी किसके एडजेसेंट होगा? V0 के. बट here the edge V0 V1 is incident on V0 and V1. V0 V1 जो एक एज है वो इंसिडेंट होगी पर्टिकुलर वर्टेक्स V0 पर और V1 पर. Now here the next
terminology, that is the degree of a vertex. किसी भी vertex की डिग्री क्या होती है, we are going to discuss that thing here. So the degree of a vertex is the number of edges incident to that vertex. डिग्री किसी भी vertex की क्या होती है, जो number of edges किसी भी एक particular vertex पर incident हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिग्री. सो फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. सो एनी ग्राफ इन विच द एजेस हैव डायरेक्शंस, कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें जो एजेस हैं उनका डायरेक्शंस डिफाइन किया हुआ है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ. सो द इन डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स v इज द नंबर ऑफ एजेस दैट हैव v एज द हेड. अगर इन डिग्री की बात करें तो इन डिग्री क्या होता है, कोई भी हमारा पर्टिकुलर वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स पर इनसाइड जितनी भी एजेस आएंगी उसको हम बोलते हैं इन डिग्री. दैट मीन्स द एजेस विच आर कमिंग टुवर्ड्स द वर्टेक्स. ऐसी एजेस जो वर्टेक्स की तरफ आ रही हैं उनको हम इन डिग्री बोलते हैं. उनके नंबर को काउंट करके जो नंबर आएगा उसको हम इन डिग्री बोलते हैं. सिमिलरली द आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स v इज द नंबर ऑफ एजेस दैट हैव v एज द टेल. सिमिलरली जो आउट डिग्री होगा वो क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ वर्टेक्स, जो भी नंबर ऑफ एजेस किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से बाहर की साइड जा रही हैं, आउटसाइड जा रही हैं, उनको हम बोलते हैं उसकी डिग्री. सो इफ डी आई इज द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स आई इन अ ग्राफ जी, सपोज अगर डी आई से हमने किसी भी एक ग्राफ जी की डिग्री को शो किया है जिसमें कि n वर्टिसेस हैं और e एजेस हैं, देन द नंबर ऑफ एजेस इज e इक्वल्स टू फ्रॉम हेयर सिग्मा 0 to n-1 di डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एजेस किसी भी ग्राफ में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारी रेंज होगी वो लाई करेगी 0 to n-1, देन di इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स हम यहाँ पर सभी वर्टेक्स की डिग्रीज को ऐड करेंगे और उन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ एजेस. Now here is a normal example of a graph. So here we have a graph in which we have vertex 1, 0, 2 and 3. तो यहाँ पर अगर हम इन डिग्री और आउट डिग्री की बात करें तो यहाँ पर सभी के लिए 3 हैं. दैट मीन्स हर एक वर्टेक्स यहाँ पर 3 एजेस से कनेक्टेड है. तो इसलिए ये क्या हुआ, हमारे यहाँ पर सभी वर्टिसेस के लिए हमने यहाँ पर 3 शो किया है. सिमिलरली जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है उसे हम देख सकते हैं 0 से 1 पर एरो आ भी रहा है और जा भी रहा है. सो इट हैज 1 इन डिग्री एंड 1 आउट डिग्री. सिमिलरली 1 के लिए क्या है, 1 से एक एरो आउटसाइड जा रहा है, ऊपर हम देख सकते हैं 1 से एक एरो, ऊपर भी एक एरो आउटसाइड जा रहा है और एक एरो इनसाइड आ रहा है. सो इट हैव 1 इन डिग्री एंड 2 आउट डिग्रीज. नाउ फॉर दिस second vertex, for the vertex 2 we have 1 arrow which is coming towards it, so it has in degree 1, but it doesn't have any arrow which is going outside of it, so it has out degree 0. Now the next thing here is terminology path. So path sequence of vertices v1 v2 up to vk such that consecutive vertices vi and vi plus 1 are adjacent. हम यहाँ पर अगर अब पाथ की बात करें, पाथ क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है, सीक्वेंस होता है हमारे डिफरेंट वर्टिसेस का, सच दैट द consecutive vertices vi and vi plus 1 are adjacent. दैट मीन्स यहाँ पर जो पाथ होगा उसमें क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट वर्टिसेस हैं उनको कलेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो vi और vi plus 1 वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे. लाइक इन दिस फिगर वी कैन सी हियर, जो 3 हम यहाँ पर इस फिगर में देखें तो a और b एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर इन दोनों को एक ही एज, कॉमन एज ज्वाइन कर रही है. सिमिलरली a और c एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, सिमिलरली c और d एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, d और e एडजेसेंट हैं और b और e एडजेसेंट हैं. सो हियर वी हैव n नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस. Now let us discuss some more terminologies related to graphs. So here the, as you can see here, simple path. So कोई भी अगर हम simple path की बात करते हैं किसी भी एक particular graph में, then it will not contain any cycle. कोई भी जो ग्राफ है उसमें अगर हम सिंपल पाथ की बात करेंगे तो वहां पर सभी वर्टिसेस कवर होंगे, बट इन सच अ मैनर दैट इट शुड नॉट मेक एनी साइकिल. लाइक हियर वी हैव
इन दिस ग्राफ वी हैव BEC। BEC ये हमने पिंक से इसमें शो किया है। इट शोज द पाथ विच डज नॉट हैव एनी साइकिल। सिमिलरली इन द नेक्स्ट graph here we have a cycle. So what is cycle? Simple path except that the last vertex is the same as the first vertex. साइकिल क्या है? कोई सिंपल ही एक पाथ होता है जिसमें कि जो फर्स्ट वर्टेक्स है हमारा वही लास्ट वर्टेक्स भी होता है। दैट मीन्स जो लास्ट वर्टेक्स है वो फिर से हमें वही वर्टेक्स मिलेगा जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। सो इट इज गोइंग टू मेक अ साइकिल। सो साइकिल को हम सर्किट भी बोलते हैं। एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, यहाँ पर ए से हमने स्टार्ट किया। सो वी हैव ए सी डी एंड अगेन ए। तो यहाँ पर एक साइकिल बनी। दैट मीन्स जहां से हम स्टार्ट हुए वहीं पर हमने वापस क्लोज किया है इस पाथ को। सो दिस इज अ साइकिल। इस साइकिल को हम सर्किट भी बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कनेक्टेड ग्राफ्स। सो एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय सम पाथ। कनेक्टेड ग्राफ मीन्स एक पर्टिकुलर ग्राफ है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एजेस या वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन ईच एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड कनेक्टेड। कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए एटलीस्ट एक पाथ है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। सिमिलरली अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ की बात करें तो वहां पर एटलीस्ट एक न एक वर्टेक्स ऐसा होगा जिस पर कि हम दूसरे वर्टेक्सेस के थ्रू नहीं पहुंच सकते। So that this type of graph is called a disconnected graph or not connected graph. As you can see here in this figure, first one is the connected graph. यहाँ पर एक vertex से आप हर एक vertex पर जा सकते हैं। So this is a connected. Similarly in the other graph, from the left side, this graph is basically divided into two parts. The left side graph, if we take any vertex, we cannot reach from दिस पार्ट टू दी वर्टेक्स ऑफ अदर पार्ट। इस पार्ट के एक वर्टेक्स से हम दूसरे पार्ट के वर्टेक्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? बेसिकली सबसेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस फॉर्मिंग अ ग्राफ। सपोज हमारे पास कोई एक मेन ग्राफ है, उसको अगर हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ सब ग्राफ। That means it must have the vertices and edges of a main graph. Similarly, connected component, that is maximal connected subgraph. Example, the graph below has 3 connected components. यहाँ पर अगर हम connected components की बात करें तो connected components में क्या होता है? जितने भी हमारे components हैं, that is vertices और edges हैं, वो एक दूसरे से connected होते हैं। As you can see in this figure. Now here are the examples of some subgraphs. Like here we have a graph G1. G1 हमारे पास ग्राफ है, इसमें vertices हैं हमारे पास 0, 1, 2 and 3. Now here we have 3 subgraphs of this graph G1. Like हमने 0 एक पहले vertex लिया, this belongs to the graph G1. ये G1 का पार्ट है, so this is also a subgraph. Similarly 0, 1, 2 लिया हमने, ये भी कलेक्शन है हमारा पार्ट है, ये भी 0, 1, 2 एक G1 का पार्ट है। So this is also a subgraph. Similarly 1, 3 and 2 हमने रिप्रेजेंट किए वर्टिसेस को, ये भी हमारे सारे वर्टिसेस G1 को बिलोंग करते हैं। So this is again a subgraph of G1. Similarly जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफ लिया है, that is 0, 1, 2 and 3. This also represents the subgraph of graph G1. Now let us discuss about trees and forests. So what are trees? Trees are basically a connected graph without any cycle. कोई भी ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई साइकिल नहीं एग्जिस्ट करती है, कोई सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम ट्री बोलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, हियर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। यहाँ पर हमने ग्राफ लिए हैं, इसमें कोई भी साइकिल मेंटेन नहीं हो रही है। दैट मीन्स अगर हम एक पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करते हैं, वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो वापस उसी वर्टेक्स पर हम नहीं पहुंच सकते। सो दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर कॉल्ड ट्रीज। एंड सिमिलरली अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। जब हम बहुत सारे ट्रीज का कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं, देन सच टेक्निक इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ्स। सो लेट n इक्वल्स टू वर्टिसेस एंड m इक्वल्स टू एजेस। हमने यहाँ पे इमेजिन किया कि हमारे पास n वर्टिसेस हैं और m एजेस हैं। सिमिलरली अ कंप्लीट ग्राफ, वन इन विच ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट। मीन्स कंप्लीट ग्राफ क्या होगा? कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसमें जितने भी पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे के
एडजेसेंट होते हैं, दैट मीन्स एवरी ग्राफ इन दिस ग्राफ एवरी वर्टेक्स is going to be adjacent to each other. So now let us discuss more about this. Like you can see here, how many total edges in a complete graph. So कितनी edges हो सकती हैं complete graph में. So each of the n vertices is incident to n minus 1 edges. जो एक particular graph है, जो n vertices हैं वो n minus 1 edges पर incident होंगे. So however we would have counted each edge twice. हम यहाँ पर अगर each edge को twice काउंट करते हैं, then therefore intuitively we have m equals to n into n minus 1 divided by 2. यहाँ पर हमारे पास m जो है वो edges को रिप्रेजेंट करता है, तो m के m नंबर ऑफ edges वो कितनी होंगी, इट इज गोइंग टू बी n into n minus 1 divided by 2. यहाँ पर n है हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस. So here therefore if a graph is not complete, अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं है तो हमारी जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो लेस देन होंगी n into n minus 1 divided by 2 से. So here as you can see n equals to 5, जो हमारे वर्टिसेस हैं वो 5 हैं और जो हमारी एजेस हैं वो कितनी हैं, 5 into 4 divided by 2. So this will be equals to 10. Now here are some more examples of connectivity. As you can see here, n denotes the set of vertices. Similarly m denotes the set of edges. So here for a tree m equals to n minus 1, यहाँ पर m equals to n minus 1 ट्री के लिए हमारे पास क्या है, जो vertices होंगे वो 5 होंगे. Similarly हमने फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस को, and it is going to be 4. So here if m is less than n minus 1, g is not connected. अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें m की वैल्यू लेस देन होगी n माइनस 1 से, तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड होगा, या हम कह सकते हैं इट इज गोइंग टू बी, और वी कैन से इट इज नॉट कनेक्टेड. सो हियर एज यू कैन सी इन दिस फिगर देयर आर टू कंपोनेंट्स एंड दीज टू आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. यहाँ पर दो सब पार्ट्स हैं एक ग्राफ के और यहाँ पर इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है. सो हियर वी हैव n इक्वल्स टू 5 एंड m इक्वल्स टू 3. Now let us discuss oriented और डायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जो एज जा रही है, अगर उसका हमने डायरेक्शन डिफाइन किया है, दैट मीन्स हम वहां पर डायरेक्टेड एजेस अगर यूज कर रहे हैं, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ. एज यू कैन सी हियर अ ग्राफ वेयर एजेस आर डायरेक्टेड. अगर आप इस फिगर में देखें तो हमारे पास ये जो एजेस हैं इनमें हमने एरो साइन यूज किया है, दैट मीन्स दे आर शोइंग द पाथ फ्रॉम which vertex they are coming and to which vertex they are going. So these types of graphs are called directed graphs. Now let us discuss about directed versus undirected graphs. So an undirected graph is one in which the pair of vertices in a edge is unordered. कोई भी जो undirected graph होता है वो ग्राफ है जिसमें कि जो हमारे सेट ऑफ वर्टिसेस हैं या एजेस हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं. दैट मीन्स v0 v1 लिखें हम या v1 v0 लिखें, ये सेम होता है. सिमिलरली अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, देन अ डायरेक्टेड ग्राफ इज वन इन विच ईच एज इज अ डायरेक्टेड पेयर ऑफ वर्टिसेस. दैट मीन्स यहाँ पर जो एजेस या ग्राफ, अगर हम वर्टिसेस के कलेक्शन की बात करें तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करते हैं. अगर उस सीक्वेंस को हम डिस्टर्ब करें तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं होती है. सो दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ. यहाँ पर अगर एग्जांपल डिस्कस करें, हमने एक वर्टेक्स सेट लिया v0 v1 दैट इज एज, सो इट विल नॉट बी इक्वल टू v1 v0. v0 v1 और v1 v0 ये इक्वल नहीं होंगे. एज यू कैन सी इन दिस फिगर हियर हमने डायरेक्टेड ग्राफ को शो किया है टेल और हेड. टेल से हेड की तरफ जो हमारा डेटा है, जो हमारा डायरेक्शन है एज का, वो हमने यहाँ पे शो किया है. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is define. So here we have different components on which you have to explain. So you have to define these components here. That is, first of all you have to define what is a graph, then you have to define what is a connected graph, then the third part is what is a subgraph, and at last you have to define what is the degree of a graph. So this is the end of today's session. Thank you.